Yes, beta, this is your page number 88 and second video of chapter number 10. I'm Malala by Malala Yousafzai. So let's start from here. Abba, you must give them free places at your school, I begged. He laughed. My mother and I had already persuaded him to give free places to a number of girls. What now? In the last video, I've talked about that when Malala saw many children of her age, where she saw near the rubbish mountain. She asked her father to go near them and talk to those children, but all the children flew away, means they ran away. So what happens? Now she again said that you need to arrange some free places at the school. Means Abba means father over here. Okay. So Malala says to her father that you need to help those children. So the father laughed because he and the mother already had given free places to number of children, right? So though my mother was not educated, she was a practical one in the family, the doer, while my father was a talker. She was always out helping people. So what happens in all this? What happens? The author talks about that my mother is the one who is the doer, means the main work is done by my mother. My father always talk. No, he's not doing any practical work. So my mother is always helping, is lending a helping hand to all the needies. So she father says my father would get angry sometimes कि मेरे पापा जो है इस चीज़ से angry means गुस्से में हो जाते हैं, because whenever he comes home from school he finds that wife is not there, means mother of Malala is not there because she is out somewhere to help some needy people. So it is all written out there, some kind of reasons they have given. Let me read it for you fast. It's all easy. He would arrive home at lunchtime and call out, "Top okay, I'm home," only to find she was out. There was no lunch for him. मतलब सिर्फ ये बोलते थे कि तौर पे काय मीन्स कि मैं आ गया हूँ, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो घर पे है कि नहीं, मीन्स मदर ऑफ मलाला इज देयर और नॉट. एंड टू हिज सरप्राइज he find that she might have visited some hospital because somebody is ill, helping some kind of people. So she's always busy. It's all written over here. You can read on your own. Sometimes though she would be out, page number 89, because she was shopping for clothes in China Bazaar, and that would be a different matter. She is not at home. Whenever the father comes, Malala's father comes from school to home, she never finds wife at home. So what happens next? Wherever we lived, my mother filled our house with people I shared my room with. Now means author talks about that the house is not alone. House is not alone means the author and her siblings are not only living in the house. There are other persons. Other persons means all those people whom the mother and father has helped also stays in the home. So let's read them. I shared my room means the author Malala shared her room with her cousin Anisa, जो कि विलेज से हैं. ठीक है, वो यहाँ पे स्कूल पढ़ना चाहती हैं, इसलिए वो यहाँ पे आई हैं. अनीसा भी रहती है मलाला के साथ. एक गर्ल भी रहती है शहनाज, जिसकी मदर का नाम सुल्ताना है. जो सुल्ताना है उन्होंने हमारे घर पे काम किया. मलाला कहती है सुल्ताना ने हमारे घर में कभी काम किया था, तो उसकी बेटी शहनाज है, वो भी मेरे साथ ही मेरे घर में मेरे रूम में रहती है. तो शहनाज क्या कहते हैं? शहनाज एंड हर सिस्टर हैड ऑल्सो बीन सेंट आउट टू कलेक्ट गार्बेज. अब वो बताती है कि शहनाज जो है, जो कि इसके साथ शेयर कर रही है रूम, जिस घर में रह रही है, जो उसकी सिस्टर है, उनको भी एक टाइम पे गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए उनको there was a need, there was a situation arised, है ना, and they need to collect the garbage because जो उनके फादर थे उनकी डेथ हो गई थी, and they were left all alone, poor, starving for food. जिनका ब्रदर था जो उनका एक ब्रदर था वो मेंटली इल था. ठीक है, किसका? शहनाज और उसकी सिस्टर का. तो क्यों मेंटली इल था? कई बार तो वो उनके कपड़ों को आग लगा देता था, सेटिंग फायर टू देयर क्लोथ्स. और जो इलेक्ट्रिक फैन जो कि मलाला की फैमिली ने दिया था उनको, इलेक्ट्रिक फैन, ताकि वो अपनी गर्मियों में उनको चला के अपने आप को ठंडा रख सके, उसने उसको बेच दिया था. सो दैट्स वाई द ब्रदर वॉज इल, मेंटली इल. सुल्ताना जो थी मदर टू शहनाज, वो शॉर्ट टेम्पर्ड थी. शॉर्ट टेम्पर्ड मीन्स गुस्से से भरी हुई थी.
बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था उनको। माई मदर डिड नॉट लाइक हैविंग हर इन द हाउस बट माई फादर अरेंज अ स्मॉल अलाउंस। अलाउंस मीन्स उसके लिए कुछ पैसों का इंतजाम कर देता कि टाइम टू टाइम उसको कुछ पैसे मिलते रहे ताकि उसकी मतलब जो डेली लाइफ है उसकी आराम से चलती रहे। फॉर हर एंड अ प्लेस फॉर शहनाज एंड अ ब्रदर एट स्कूल। मतलब फादर मम्मा को पसंद नहीं थी, माई मदर डिडंट लाइक सुल्ताना, है ना। तो फिर भी लेकिन मेरे फादर ने सबको पूरी उनकी फैमिली को हेल्प किया। सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, शहनाज हैड नेवर बीन टू स्कूल। शहनाज जो थी वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी। तो यहाँ पे मलाला कहती हैं जबकि वो मुझसे बड़ी हैं और उसको हमारे स्कूल में 2 क्लासेस नीचे लिया गया मुझसे। सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट। देयर वाज आल्सो नूरिया, एक और नूरिया हैं जिनकी मदर का नाम खारू है, ठीक है। वो हमारे घर पे वॉशिंग डिड सम ऑफ आवर वॉशिंग एंड क्लीनिंग, है ना। कि जो उनकी खारू जो मदर हैं, उनकी बेटी नूरिया हैं, वो हमारे घर में वॉशिंग वगैरह क्लीनिंग करती हैं। तो उनकी बेटी नूरिया वो भी मेरे साथ रहती हैं। अलिशपा वन ऑफ द डॉटर्स ऑफ खालिदा, खालिदा जो हमारे यहाँ पे कुकिंग करती थी, ठीक है, हमारी मम्मा को कुकिंग में हेल्प करती थी, उनकी डॉटर का नाम अलिशपा है, वो भी यहाँ पे रहती हैं। खालिदा हैड बीन सोल्ड इनटू मैरिज। अब खालिदा के बारे में बताया गया है जिसकी डॉटर का नाम अलिशपा है कि जो खालिदा है उसकी शादी मतलब उसको बेच दिया गया था बेटा अर्लियर, यू नो, when there was a child marriage. Today we are very much aware of the rules, laws, but before that, girls were sold into marriages, the old means, है ना, कि 10 साल की लड़की हुई तो उसको बेच दिया किसी बूढ़े के साथ, है ना, कि इसकी शादी होगी उसको साथ, मतलब it was like kind of a trend, fashion in India दैट टाइम। तो खालिदा को भी उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। ही वाज सोल्ड इनटू अ मैरिज टू एन ओल्ड मैन जो कि उसको बहुत मारता था, पीटता था, ठीक है ना। फिर वो अपनी एक सिचुएशन ऐसी आई, एट द एंड शी रैन, मीन्स खालिदा, एंड 3 ऑफ हर डॉटर्स रैन, एंड उसकी खुद की फैमिली ने, खालिदा की खुद की फैमिली ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज उस टाइम ये बिलीव करते थे कि अगर वुमेन अपने हस्बैंड का घर छोड़ के आती है तो वो अपने हमारे लिए शर्म की बात है ना। सो फॉर अ वाइल हर डॉटर्स ऑल्सो हैड टू कलेक्ट रबिश टू सर्वाइव। तो खालिदा की लड़कियों को भी, तीनों बच्चियों को भी गार्बेज को मतलब कलेक्ट करना पड़ा सर्वाइवल के लिए। और हर स्टोरी वॉज लाइक समथिंग आउट ऑफ नॉवेल्स आई हैड स्टार्टेड रीडिंग। मतलब उसकी स्टोरी खालिदा की ऐसी स्टोरी लगती है जैसे कि हम नॉवेल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। दिस वॉज द सेकेंड वीडियो फॉर दिस चैप्टर। नेक्स्ट आई विल मेक आफ्टरवर्ड्स। थैंक यू।